Welcome you all in the lecture of engineering graphics and design. In the last lecture we have studied about the different shapes of involute. In this lecture we are going to study about the cycloid. So first of all, what is cycloid? When circle rolls on a straight path, the fixed point on the circle generates some path. That path is called as the cycloid. So let's start with the problem. Here the given data is draw the locus of a point on the periphery of a circle which rolls on a straight line path. Take the circle diameter as a 50 mm. Here the diameter is given as 50 mm. So take the radius 25 mm on the rounder and draw one circle. After that, draw one horizontal line and on which the circle is rotated. Here the name of the curve is not mentioned, but the circle rolls on the straight line path. So from that we can get the circle rolls on the straight line path. The point on the periphery generate the cycloid curve. Now divide the circle into the 8 equal part. After that, mark the point P. Draw the horizontal line from the center point. Mark the distance pi d on the horizontal line passing from the P point. After that, divide the center line into the 8 equal parts. Here the distance pi d is maybe 157 mm. So it's not easy to divide it into the 8 equal part directly from the using scale. So you can draw the inclined line from the P point 160 mm and then connect the ending point pi d as we discussed in the last lecture how to divide the line. So from that you can divide that line into the 8 equal part. Then mark C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. After that take the rounder and after that draw the horizontal line passing from the 1 and 7 point, 2 and 6 point already present. After that 3 and 5 point, and last one is the 4 point. Here you have to check the line is perfectly horizontal and it is parallel to the others. So make one reference line like passing from the P is our reference line, and scroll the roller, put it on the 1/7 and draw the horizontal line. So you can say that it is exactly parallel, and the distance from the C4 to the horizontal line passing from the 4 point, it is equal to the radius CP. Okay, now take the radius on the rounder. Put the rounder at the C1 point and take the arc C1 from the 1/7 line. ओके, आपको क्या करना है, सिंपल C1 पर राउंडर रखना है और 1/7 में से जो लाइन पास हो रही है उस पर आपको क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है. क्लियर हो? ओके, उसके बाद में सेम C2 पर राउंडर. यहाँ पे हमने राउंडर पर रेडियस जितना डिस्टेंस ले लिया है. ओके, टेक द डिस्टेंस ऑन द राउंडर एज इक्वल टू द radius CP. Okay, again rounder place on the C2 and take the arc on the line passing from the 2 point. Okay, तो 2 point में सेकंड पॉइंट में से पास होती हुई लाइन कौन सी है, ये है, और हमने राउंडर C2 पर रख दिया और आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है. तो ये हो गई हमारी आर्क. ये जो C1 वाला है पॉइंट, वहां पे ही हमारी आर्क आ रही है. सेम C3 पर राउंडर रख लो, 3 में से जो लाइन पास हो रही है वहां पर आर्क ड्रॉ कर लो. C4 में राउंडर, C4 में से पास होती लाइन, तो यहाँ पे आएगी आर्क. ओके, ये जो पॉइंट है वहां पे आर्क आएगी. डन. तो ये डिस्टेंस जो है अगर नहीं आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो आपकी लाइन जो है वो परफेक्टली पैरेलल नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, उसी वजह से दिक्कत होती होगी. ओके, उसके बाद में C5 में से आपको राउंडर पर आर्क ड्रॉ करनी है. C6, सेम C6 पर राउंडर रख के 6 में से पास होती हुई लाइन पर, 7 में से और 8 में से. डन. अभी आपको क्या करना है, पॉइंट जो है उसको हाईलाइट कर देना है. हाईलाइट दी पॉइंट्स.
आफ्टर दैट जॉइन द पॉइंट P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 and P8. Connect that point, so you get the curve cycloid. क्लियर हो? सिंपल है. जब भी कोई सर्कल रोल हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन पथ पर, तो हमने P पॉइंट जो है उसको फिक्स कर लिया, राइट? तो जैसे जैसे सर्कल आगे बढ़ता जाएगा तो P पॉइंट मूव होते हुए, देखो जैसे सर्कल हमारा जो है वो रोटेट होते हुए यहाँ पे आ गया है. सर्कल का सेंटर जो है वो यहाँ पे है, ओके और ये सर्कल रोटेट होते हुए यहाँ पे पहुंच गया है सपोज. ओके तो सर्कल रोटेट होते हुए आगे बढ़ा, तो ये पॉइंट जो है वो अभी कहाँ पे था, बॉटम साइड पर था, बट जैसे रोल करते हुए आगे आया तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे. वैसे ही सर्कल रोल करते हुए जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये पॉइंट मूव होते हुए कहाँ पे आगे ही बढ़ने वाला है, बट नॉट इन द स्ट्रेट लाइन, इन दिस कर्व. ओके एक बार फिर से देख लेते हैं कि साइक्लॉइड कैसे जनरेट होता है. मैंने पहले भी आपको बताया था कि साइक्लॉइड कैसे जनरेट होता है. ये इन्वॉल्यूट के लिए, ये साइक्लॉइड के लिए. दिख रहा है कंप्लीट. जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर दिया है सर्कल पर, और देखो यहाँ पे रेड पॉइंट जो है वो फिक्स है और वो आगे बढ़ रहा है. जैसे जैसे सर्कल आगे बढ़ रहा है तो रेड पॉइंट की मूवमेंट कैसी होगी वो हमें सिर्फ ड्रॉ करना है. ओके तो हम डायरेक्टली तो ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, सर्कल को डिवाइड कर लिया और उसके बाद में हमने सेंटर पॉइंट को मार्क किया और सेंटर पॉइंट से आर्क ड्रॉ कर ली. तो बहुत ही सिंपल है, मेथड सिर्फ आप याद रख लो. इन्वॉल्यूट तो कंप्लीट हो ही गया था सबका. ओके इन्वॉल्यूट में स्ट्रिंग लाइन जो थी वो इक्वल थी या ज़्यादा थी कम थी, उस हिसाब से हमने सारे इन्वॉल्यूट ड्रॉ किए थे. उसके बाद में हमने कंपोजिट शेप के लिए भी इन्वॉल्यूट ड्रॉ किया था, ये भी बहुत ईजी था. ओके और उसके बाद में लास्ट में हमने साइक्लॉइड डिस्कस किया. तो साइक्लॉइड सबके लिए क्लियर है कि साइक्लॉइड कैसे ड्रॉ किया जाता है, 100%. ओके गुड. उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ईपी साइक्लॉइड, सॉरी सुपीरियर ट्रोचॉइड. सुपीरियर ट्रोचॉइड में क्या था, मैंने बताया था कि पी पॉइंट जो होता है वो पेरिफेरी से अवे होता है, मतलब सर्कल के आउटसाइड रहता है. ओके 5 mm आउटसाइड फ्रॉम दी सर्कल. ओके जबकि यहाँ पे जो हमने साइक्लॉइड ड्रॉ किया उसमें क्या था, पी पॉइंट एग्जैक्टली ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल था. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल. जब भी ऑन द पेरिफेरी होता है, सर्कल का जो सर्कमफरेंस है, सर्कल की जो पेरिफेरी है उस पर ही पॉइंट है, देन साइक्लॉइड जनरेट होता है. अगर ये चीज जो है पॉइंट पी जो है वो अवे फ्रॉम द पेरिफेरी है, देन सुपीरियर ट्रोचॉइड, और इनसाइड फ्रॉम द पेरिफेरी देन इंफीरियर ट्रोचॉइड. क्लियर हो? तो अभी 5 mm आउटसाइड है, तो आपको क्या करना है, सिंपल है. पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो. सर्कल कितना ड्रॉ करना है, जितना हमारा डायमीटर है उसके हिसाब से ही पहले सर्कल ड्रॉ करना है. अभी हमने ये एक लाइन ड्रॉ की, कितनी ड्रॉ की, 25 mm तो था ही. हमारी जो रेडियस थी वो कितनी थी, 25 mm तो थी, बट हमारा पी पॉइंट जो है वो पेरिफेरी से कितना दूर है, 5 mm ज्यादा दूर है. तो हमारा पी पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा, अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहाँ सेंटर से, ये जो हमारा सेंटर है वहां से कितने डिस्टेंस पर आएगा, 30 mm डिस्टेंस पर आएगा. कितने mm डिस्टेंस पर, 30 mm. ये 25 और ये 5, तो टोटल हो गया 30 mm. तो उसमें से भी हमें क्या करना है, एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है. क्लियर हो? कुछ नहीं है, जैसे सिंपल आगे भी हमने सर्कल ड्रॉ किया था वैसे सर्कल ड्रॉ कर लिया जो हमारा डायमीटर है. उसके बाद पी पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड है 5 mm. तो 5 mm आउटसाइड हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली और उसके बाद में हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लिया. कुल मिला के ये जो हुआ वो कितने डायमीटर का हुआ, 60 डायमीटर का, और 30 mm रेडियस का हुआ. ओके एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, वो कितनी होगी, हमारा पाई डी जितना है. देखो पाई डी जब भी कैलकुलेट करते हैं तो इतना ही आएगा. ये डायमीटर डी जो है वो फिक्स है हमारे पाई डी के लिए, बराबर है. जो रेफरेंस सर्कल है हमारा वही हमारा डायमीटर जो है उसमें हम कंसीडर करेंगे पाई डी कैलकुलेट करने के लिए. ओके अभी हमने क्या किया, सर्कल को डिवाइड कर लिया. सर्कल को डिवाइड कर लिया. अभी देखो डिवाइड जो हो रहा है सर्कल, वो आउटसाइड सर्कल जो है वही डिवाइड हो रहा है, उसके साथ में इनसाइड हो रहा है, नो डाउट. बट अभी हमें ध्यान क्या रखना है कि पी पॉइंट हमारा कहाँ है, ये सर्कल पर है ना. तो हमें डिवाइड कौन सा सर्कल करना है, ये आउटसाइड वाला सर्कल डिवाइड करना है. ओके उसके बाद में नंबरिंग कर लो. उसके बाद में क्या करो, हर एक में से लाइन पास कर लो, सेंटर लाइन को डिवाइड कर लो. पी में से लाइन पास कर ली हमने 1 7 में से.
देखो ये एग्जैक्टली यहाँ पे टच करके नहीं जाएगी, जब भी आप ड्रॉ करोगे तो 17 जो है वो शायद बॉटम साइड थोड़ा रह जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना कि भाई ये इसमें 17 की लाइन ये सर्कल को टच करके जा रही है, आपको नहीं जा रही है, तो डोंट वरी, 17 जो है वो थोड़ा नीचे रह जाएगा, तो ये एग्जैक्टली टच करके नहीं जाएगी यहाँ से। ओके, तो हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, 17 में से पास होती हुई। ओके, 2 6 देन 3 5 एंड 4, क्लियर हो। उसके बाद में C1 पर राउंडर और 17 में से जो लाइन पास हो रही है वहां पर आर। हाँ, यहाँ पे डिस्टेंस कितना लोगे, तो डिस्टेंस राउंडर पर ऑलवेज कितना लेना है, CP जितना लेना है। अभी हमारा P पॉइंट जो है वो आउटसाइड है, तो CP डिस्टेंस कितना हो गया, अभी हमारा राउंडर पर जो डिस्टेंस होगा, C1 पर राउंडर रख के हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा, CP जितना होगा, राइट। तो CP जो डिस्टेंस है वो अभी कितना है, 30 mm है, यहाँ पे मैंने लिख के ही रखा हुआ है। CP डिस्टेंस कितना है, 30 mm है, तो आपका राउंडर पर डिस्टेंस कितना आएगा, 30 mm आएगा। ओके, क्लियर हो। तो C1 पर राउंडर रख के आपने आर्क ड्रॉ कर लिया। देखो ये जो आर्क है वो हम ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ड्रॉ करेंगे, क्लॉकवाइज। देखो C1 पर राउंडर रख के हम यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ कर सकते हैं ना, पर हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर्कल कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे आर्क भी कैसे लगेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लगेंगे। ओके, C2 में से भी हमने आर्क ड्रॉ कर लिया, C3 C4 5 6 7 एंड 8। ओके, उसके बाद में हमें इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो देखो जब भी सुपीरियर ट्रॉचॉइड ड्रॉ होता होगा तब थोड़ा ये P1 वाला पॉइंट है वो बाहर की ओर आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुपीरियर ट्रॉचॉइड में ये जो कर्व है इस तरह से जनरेट हो रहा है। डन। सेम टू सेम इंफीरियर ट्रॉचॉइड है, वहां पे P पॉइंट जो है वो क्या है, 5 mm इनसाइड है। तो ये हो गया हमारा मेन सर्कल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। उसके बाद 5 mm इनसाइड, मतलब हमारा जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, इनर साइड सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 40 mm। मेन सर्कल तो 50 mm ही रहेगा, इनर साइड सर्कल जो है उसका डायमीटर हो जाएगा 40 mm। उसको ही हमें डिवाइड करना है, उसमें से ही हम क्या करेंगे, लाइन पास करेंगे। सेंटर लाइन को डिवाइड कर लिया, C1 C2 C3 C4 C5 6 6 7 8 1 7 3 5 4, डन। फिर C1 पर राउंडर, देखो यहाँ पे भी रेडियस कितनी लेंगे हम, CP जितनी ही रेडियस लेंगे। देखो यहाँ पे मिस्टेक ना हो जाए, 25 mm रेडियस ना ले ले, यहाँ पे रेडियस हो जाएगी 20 mm। ओके, क्योंकि डायमीटर कितना है 40 है, तो रेडियस कितनी हो गई, 20 हो गई। ओके, तो ये C1 पर राउंडर रख के हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया, C2 C3 C4 5 6 7 एंड 8, देन कनेक्ट दैट पॉइंट। ओके, तो ये हो गया हमारा इंफीरियर ट्रॉचॉइड। क्लियर हो। अभी नेक्स्ट जो है वो है इपीसाइक्लोइड। क्या है, इपीसाइक्लोइड। तो इपीसाइक्लोइड में क्या गिवन होता है, देखो साइक्लोइड जब था तो वहां पे क्या होता था, पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन पर सर्कल जो था वो रोटेट होता था। जबकि इपीसाइक्लोइड हो, हाइपोसाइक्लोइड हो, तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर सर्कल पर सर्कल रोटेट होता है, या तो आउटसाइड होता है या तो इनसाइड होता है। तो जब भी आउटसाइड सर्कल के आउटसाइड दूसरा कोई सर्कल रोटेट हो रहा है देन इपीसाइक्लोइड, बट सर्कल के इनसाइड कोई सर्कल रोटेट हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज द हाइपोसाइक्लोइड। ओके, अभी देखो प्रॉब्लम रीड करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल विच रोल्स ऑन द कर्व पाथ। कर्व पाथ मतलब एक दूसरा सर्कल है, उसका कर्व पाथ है, उस पर एक सर्कल रोटेट हो रहा है। टेक द डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्कल, ये जो रोल कर रहा है सर्कल उसका डायमीटर कितना है, 50 mm है। एंड द रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल, मतलब ये जो डायरेक्टिंग सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 75 mm। देखो यहाँ पे दूसरा जो सर्कल है उसकी रेडियस गिवन है, जबकि जो रोल हो रहा है वो जो है उसका डायमीटर गिवन है। ओके, क्लियर हो। तो देखो इस तरह से तो नहीं ड्रॉ करना है, थोड़ा हम अलग मेथड से ड्रॉ करने वाला है। आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा दूं। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, थीटा। आपको क्या करना है, एंगल थीटा फाइंड करना है। ओके, तो एंगल थीटा कैसे फाइंड होता है, तो थीटा इज इक्वल टू R/R मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री।
ओके 360 डिग्री। तो हमारा थीटा कैसे फाइंड होगा, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन एक मेंशन आएगा, हम देखते हैं इक्वेशन पहले। यस, थीटा इज इक्वल टू क्या है, r/r मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो हमें सबसे पहले थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, थीटा इज इक्वल टू r/r। तो r हमारा यहाँ पे कितना है, स्मॉल r 25, कैपिटल R हो जाएगा 75 तो है ही, गिवन ही है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है 360 तो है ही। ओके, तो ये हो गया 1/3। तो कुल मिला के आंसर आ गया 120 डिग्री। कितना आ गया आंसर, 120 डिग्री। तो ये जो थीटा हम ड्रॉ करने वाला है वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ओके, अभी पहले से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट मार्क करना है, ओ क्या मार्क करना है, ओ पॉइंट मार्क करना है, और उसमें से आर रेडियस ड्रॉ करनी है। कैपिटल आर मतलब जो बिगर रेडियस है वो। ओके, कोई भी एंगल पर ये ड्रॉ कर सकते हो आप। ओके, कहीं पे भी आप ड्रॉ कर लो, पहले आर बराबर उसका डिस्टेंस कितना रखना है, 75 mm। ओके, यहाँ पे एंगल आपको कुछ अभी मेंशन नहीं करना है। उसके बाद में राउंडर लेना है और राउंडर से एक कर्व ड्रॉ कर लेना है। रेडियस जो है इतना डिस्टेंस लेके एक कर्व ड्रॉ कर लो। ओके, इतना तो हो सकता है, इजी है। ओके, डन। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टिंग सर्कल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक डायरेक्टिंग सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ओके, उसके बाद में देखो ये डायरेक्टली आप ये सर्कल नहीं ड्रॉ कर पाओगे, इसलिए आपको समझा रहा हूं कि आपको क्या करना है, इसी लाइन को एक्सटेंड करना है। ये जो लाइन है उसी लाइन को एक्सटेंड करना है, कहाँ तक, तो हमारी दूसरी रेडियस कितनी है, 50 mm डायमीटर है, मतलब 25 mm रेडियस है। तो इसको एक्सटेंड कर लो थोड़ा, कितना, 25 mm तक। तो ये हो गया हमारा दूसरा सेंटर, और वहां से आपको क्या करना है, ये सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये कितना होगा डिस्टेंस, 25 mm। ओके, तो इतना डिस्टेंस लेके आपको क्या करना है, एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ओके, गुड, यहां तक क्लियर हो। उसके बाद में ये हो गया हमारा रोलिंग सर्कल। ओके, कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं गिवन होगी, आपको वो अपने तरफ से डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, सर्कल को डिवाइड कर लेना है। बट डिवाइड कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ये जो लाइन है वो हमारी रेफरेंस लाइन हो जाएगी। ये जो लाइन जा रही है वो हमारी रेफरेंस लाइन है, तो उसके रिस्पेक्ट में ही हम डिवाइड करेंगे। तो उसका सेंटर निकाला, फिर 90 डिग्री पर दूसरी लाइन ड्रॉ की, 45 डिग्री पर। या तो यहाँ पे आप क्या करो, ये जो लाइन है, ये आपकी जो लाइन है उस पर आप क्या कर लो, आपका सर्कल मास्टर जो है वो प्लेस कर लो। ओके, उसके बाद में क्या करो, यहाँ पे 45 डिग्री पर एक एंगल मार्क करो, यहाँ पे मार्क करो, उसको रोटेट करके यहाँ पे 45 डिग्री पर, यहाँ पे 45 डिग्री पर। ओके, इतना हो जाता है, सिंपल है। उसके बाद में नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, डन। नाउ राउंडर लो, राउंडर से 1 पॉइंट तक का डिस्टेंस लो। राउंडर को कहाँ पे प्लेस करना है, ओ पर ही करना है। राउंडर को ओ पॉइंट पर फिक्स करो, और पेंसिल जो है वो आपकी 1 पॉइंट पर लाओ। ओके, और 1 7 में से आर्क ड्रॉ करो। सबसे पहले इसने क्या किया हुआ है, ओ को फिक्स किया हुआ है, ओ से 4 जितना डिस्टेंस लिया है, और 4 में से आर्क ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद में एंगल ड्रॉ किया हुआ है। एंगल कितना होगा हमारा, यहां से हमें मेजर करना है। यहां पे आपको क्या करना है, आपका जो प्रोटेक्टर है उसको आपको यहाँ पे प्लेस करना है। प्रोटेक्टर प्लेस करने के बाद 120 डिग्री मेजर करना है, और उसको मार्क करके दूसरी एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, क्योंकि थीटा हमारा कितना है, 120 डिग्री है। उसके बाद में एंगल को डिवाइड करना है। अभी 120 डिग्री को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 120 डिग्री को, सर्कल को जितने पार्ट में डिवाइड किया है उतने पार्ट में। तो 120 डिवाइडेड बाय कितना होगा, सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 8 पार्ट में। तो इसको भी हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। तो कितना आएगा आंसर, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री पर हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। ओके, क्या करेंगे, 15 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है, 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, 90, उस तरह से 120 डिग्री तक जाना है। डन।
क्लियर हो? ओके गुड। उसके बाद में जैसे मैंने बताया राउंडर को कहाँ पे प्लेस करना है, ओ पॉइंट पर। ओ से सी जितना डिस्टेंस लेके आर्क ड्रॉ कर लो। यहाँ पे दूसरा सर्कल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फिर ओ से 3 जितना डिस्टेंस, ओ पॉइंट पर राउंडर, 3 पर पेंसिल और आर्क ड्रॉ कर लो। सेम 2 पर पेंसिल और आर्क ड्रॉ कर लो, 1 पर पेंसिल और आर्क ड्रॉ कर लो। ओके, इतना हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको सीपी जितना डिस्टेंस लेना है। पहले तो सर्कल जो डिवाइड हुआ है वहां पे पॉइंट आप हाईलाइट कर दो, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C1 एंड C8। ओके, देन C1 पर राउंडर, सीपी जितना डिस्टेंस दिया हुआ है C1 पर राउंडर, 1 में से जो आर्क पास हो रही है उस पर दूसरी आर्क क्रिएट करो। C2 पर राउंडर, 2 में से जो पास हो रही है उस पर आर्क, C3 में से, C4 में से, 5 में से, 6 में से, 7 में से एंड 8 में से। यहाँ पे हर बार मिस्टेक क्या होती है कि बच्चे समझ लेते हैं कि C में से जो पास हो रही है वही 2, 7 में से पास हो रही है। यहाँ पे देखो 2 कर्व अलग है, C में से पास होता हुआ कर्व और 2, 7 में से पास होता हुआ कर्व, ये दोनों क्या है, अलग है। ओके गुड, यहाँ तक क्लियर हो? ओके, देन मार्क द पॉइंट एंड हाईलाइट इट। क्लियर हो? ओके गुड। सो ये हो गया हमारा ईपी साइक्लोइड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द लेक्चर।